Hello, my dear students of 10th Standard English Medium. Once again, welcome back to my class of English. And this time around, we are going to study English grammar. As you might have known that by now, we have studied so many chapters of textbook, both the textbooks, okay, First Flight and Footprints. So we have almost completed half of the course from the textbooks through online lectures only. So I've decided to just move on with some of the grammar chapters now. Okay, लेकिन ग्रामर के जो हमारे सिलेबस में जो स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा टेंसेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, because most of those chapters are very much dependent on the knowledge of the tenses only. So obviously, in case if you know the tenses well, only then you will be able to perform, only then you will be able to study those chapters of grammar well. So in a way, you can say that the knowledge of tenses is very, very essential to build a platform of studying grammar. Eventually, that will be helpful for your studies up to the college level also. ठीक है, आप जब तक कॉलेज लेवल पर पहुंचेंगे पढ़ाई में, तब तक ये नॉलेज आपको काम में आने वाला है, और इसीलिए थोड़ा सा एक टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे टेंसेस, और ये टेंसेस का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के ऊपर. This is only going to be the introduction part of the tenses. It does not cover the overall study of the tenses, right? We'll have the detailed studies of the tenses one by one, okay, in the subsequent lectures. But right now in this particular lecture, we are going to have an idea about, we may say that the introduction of the tenses only. Okay, now many of you might have the knowledge of the tenses so far, but there will be some of you who might not have the kind of idea of what the tenses are, what the purpose of using the tenses are in the language. ये सारा जो है, या तो अगर आप पढ़े भी होंगे तो शायद आप भूल गए होंगे. That's a kind of, the kind of common tendency that we as teachers find among the students, कि पढ़ाई करने के बाद वो आगे जाके थोड़ा भूल जाते हैं, ये चीज़ है. And out of the experiences I have seen these tendencies among the students, especially among the students between 9th standard to 12th standard. तो इसलिए उसका थोड़ा सा रिपीट स्टडी करना, और क्योंकि 10th का जो ईयर है आपका बोर्ड का ईयर होता है, एंड दैट्स व्हाई उसका थोड़ा रिपीट स्टडी होना बहुत ज़रूरी है. और हाँ, साथ में आपको भले ही आपको नॉलेज होगा, लेकिन फिर भी साथ में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि simultaneously you will also have a chance to study something new, something which you might not have known so far. आपने अभी तक जो नहीं आपको जानने को मिला होगा, वैसी भी कुछ बातें आपको ग्रामर के यानी कि खास करके टेंसेस के स्टडी के दौरान जानने को मिलेगी. ओके, क्योंकि टेंसेस का स्टडी जो है वो जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा डीप है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल यूसेजेस ऑफ द टेंसेस. ओके, हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है, सपोज उसमें अगर हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, तो उसमें टेंसेस का कई बार मैंने देखा है कि बहुत गलत उपयोग हो जाता है, जाने अनजाने में. ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के ऐसा, बट मे बी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, और मे बी बिकॉज ऑफ the reason that certain concepts are not cleared in your mind, and maybe because of the lack of practice also. कि कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज तो होता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होता है, और इसलिए जो गलत उपयोग हो जाता है टेंसेस का वो हो जाता है. So I would strongly recommend to watch this lecture till the end very carefully, and in case अगर आपको नहीं समझ में आता है, कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो डायरेक्टली आप मुझे कन्वे कर सकते हैं through the message, through WhatsApp, and through the mobile app also. Classroom का आपका जो मोबाइल ऐप है उसके जरिए भी आप अपने डाउट राइज कर सकते हो. और दूसरी बार वीडियो लेक्चर का फायदा ये है कि दूसरी बार उसको देखने का एक ऑप्शन तो आपके पास हमेशा रहता ही है. ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम शुरू करते हैं. फर्स्टली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू व्हाट डज टेंसेस स्टैंड फॉर. टेंसेस का मतलब क्या होता है.
टेंसेस स्टैंड फॉर टाइम ऑफ द एक्शन। हिंदी में हम उसको काल बोलते हैं, गुजराती में भी लगभग वही वर्ड यूज होता है, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये सारे वर्ड हम यूज करते हैं, बट मेनली इन इंग्लिश वी यूज दीस थ्री वर्ड्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, ये तीन मेन टेंसेस होते हैं। द टाइम ऑफ द एक्शन, इन केस इफ वी टॉक अबाउट, ओके, तो टाइम ऑफ द एक्शन उसका तीन मेन क्लासिफिकेशन है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो मेनली तीन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बट नंबर वाइज अगर देखा जाए, या तो डीप क्लासिफिकेशन उसका किया जाए टेंसेस का, ओके, तो टोटल मिला के 12 टेंसेस। As you can see on the board, all the 12 tenses have been listed out already. Okay, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेंसेस का सीधा जो रिलेशन है वो टाइम, जो क्रिया होती है, एक्शन, उसके टाइम के साथ होता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई apart from listing out the names of the tenses on the board, I have also listed out verbs also. उसके बारे में थोड़ा सा बाद में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्रिया यानी कि वर्ब्स, ओके, उसका जब समय चेंज हो जाता है, यानी कि एक्शन का समय चेंज हो जाता है, तो टेंसेस भी अलग हो जाता है। So depending on the time of the action in our daily communication and in the writing form also, in written communication also, we are compelled to use, we are supposed to use a proper particular tense depending on the situation. ठीक है, जैसे कि जो टाइप की एक्शन है उसके मुताबिक हमें टेंस यूज करना होता है, मेरे कहने का वही मतलब है। ठीक है, तो just as I told you, the three bifurcation, the three main classification of the tenses are present, past and future. Now in present tense and in past tense and as well as in future tense, we have more sub classification also. Okay, present, future and past, all the three tenses are subdivided into 4 categories each, और इस तरह से 12 टेंसेस होते हैं टोटल मिला के। ठीक है, और 12 के 12 टेंसेस को याद रखना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि तीनों का सब डिवीजन 4 4 4 यानी ऐसे करके 3 4 12 ऐसे करके इतने टोटल मिला के टेंसेस होते हैं। तो प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 इस तरह से देखा जाए तो शब्दों का थोड़ा बहुत चेंजेस होता है नाम में, अदरवाइज इट ऑलमोस्ट लुक्स वेरी सिमिलर। इन केस इफ वी read the name of the tenses, then present tense is divided into 4 types of present tenses, like simple present tense, and then the second one is present continuous tense. The next one is present perfect tense, and the fourth one is present perfect continuous tense. तो यहाँ पे present word जो है वो dominate कर रहा है, जाहिर सी बात है, present tense का एक क्लासिफिकेशन है इसलिए। ओके, सो अगर ये वर्ड को चेंज करके पास्ट लिख देंगे हम, तो बाकी सारे वर्ड्स तो सेम ही रहेंगे। सो इन केस इफ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन इन द पास्ट टेंस, देन वी हैव सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एंड सिमिलरली इन केस इफ यू मूव फर्दर डाउन टू फ्यूचर टेंस, तो उसमें भी वो वर्ड जो है की वर्ड वो रिप्लेस हो जाएगा, फ्यूचर वर्ड लगेगा। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो इस तरह से हमारे 12 टेंसेस, राइट। सो 12 टेंसेस का नाम याद रखना तो आसान, but the main problem comes about understanding and learning the usage of each and every tense. यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और यूसेज की अगर हम बात करें तो sometimes we like interchange the tenses with each other without understanding it properly. Okay,
लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि कोई अगर हमें पूछता है कि आप कहाँ पे रहते हो, तो मैं गांधीनगर में रहता हूँ, एंड इन इंग्लिश द सेम पर्सन वुड से द सेम सेंटेंस ही वुड ट्रांसलेट बाय सेइंग दैट आई एम लिविंग इन गांधीनगर, आई एम लिविंग इन गांधीनगर, व्हिच इज बेसिकली अ रॉन्ग सेंटेंस। ओके, उसको दिमाग में ये है कि मैं गांधीनगर में रह रहा हूं, यानी कि ये मेरी एक्शन जो है वो चल रही है, तो कंटिन्यूअस टेंस मुझे यूज करना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और उस हिसाब से उसको इसी तरह से ट्रांसलेट करते हैं कि आई एम लिविंग इन गांधीनगर, आई एम लिविंग इन अहमदाबाद, आई एम लिविंग इन बॉम्बे, एटसेट्रा। ओके, बट द राइट सेंटेंस इज आई लिव इन गांधीनगर। ओके, द करेक्ट सेंटेंस इज आई लिव इन गांधीनगर। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सेंटेंस का यूसेज कुछ इस तरह से है कि एक ऐसी एक्शन के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है, जो इन जनरल हो रही है। इट्स नॉट दैट इट्स हैपनिंग राइट नाउ, इट इज लाइक इन कंटिन्यूएशन और इट इज इन प्रोग्रेस राइट नाउ। ऐसी एक्शन नहीं है वो। ओके, वो लाइक इट्स अ काइंड ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशन व्हिच हैज बीन ऑनगोइंग फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ पीरियड। ठीक है, काफी टाइम से ये एक्शन जो है वो चलती आ रही है, और प्रेजेंट अभी भी चल रही है, फ्यूचर में इन द कमिंग years also it is going to be like that. So based on this understanding, the ideal way of translating that sentence is to say I live in Gandhinagar. Okay, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है। डिटेल में स्टडी ऑब्वियसली हम बाद में करेंगे, लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल दिया था is relevant to the simple present tense. Simple present tense, which is more dominant than any other tenses in English language, and for that matter in any other language. आपको ये भी मैं साथ में बता दूं कि जो टेंसेस होते हैं वो हर एक लैंग्वेज में होते हैं। हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी में, गुजराती में और कोई भी लैंग्वेज में टेंसेस तो होते ही, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं कि वो एक dominant tenses as compared to the other tenses, so the same rule applies in other languages also, के बाकी सारे tenses के मुकाबले languages में simple present tense का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। okay, and that's why it is the most important tenses of all. सबसे ज्यादा उसका उपयोग होता है, इसलिए सबसे important tense भी simple present tense है। तो मतलब साफ है कि all the tenses do not carry equal importance. Some tenses are used more, some tenses are used in abundance, like simple present tense, उसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, and then there are some tenses which are used at a moderate level, okay, and then some tenses are used very less, ठीक है। इसलिए सभी tenses का equal importance नहीं है। ओके, एक बहुत ही रफ एस्टिमेट अगर मुझे देना है सभी 12 के 12 टेंसेस का यूसेज के बारे में, तो मैं बहुत ही जल्दी आपको बता दूंगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है इसलिए, लेकिन हाँ आने वाले लेक्चर में उसका डिटेल में हम स्टडी जरूर करेंगे। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके, वहां से हम शुरू करते हैं कि एक ऐसी घटना के बारे में हम बता रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो कि इट्स काइंड ऑफ a kind of general action. It generally describes the status of the subject. Subject यानी जिसको हिंदी में या गुजराती में हम कर्ता बोलते हैं, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कि जनरल स्टेटस हमारा अभी दर्शाता है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एग्जांपल दिया कि I live in Gandhinagar, so it describes the kind of common general status in the present situation. Okay, he works in TCS. दूसरा एग्जांपल कि वो TCS में काम कर रहा है। Not like he is working in TCS. It's not like that. It's a wrong statement. क्योंकि हम उसके present status की बात कर रहे हैं work wise, ठीक है, तो we can say that he works in TCS, right? तो ये like एक ऐसी एक्शन के बारे में सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया जा रहा है जो कि नॉर्मली आजकल हो रही है, जो आजकल का सब्जेक्ट का नॉर्मल स्टेटस है, right? Second one is present continuous tense. Present continuous tense नाम से ही क्लियर है
कि इट डिस्क्राइब्स द एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ सेइंग इट। ओके, यानी कि अभी फिलहाल वर्तमान समय में वो एक्शन चल रहा है। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल some children are playing in the garden. So when you are watching at some direction and you see that some children are playing in the garden, it means that you are defining an action which is in progress at that particular time. क्या आप जब देख रहे हो उस वक्त वो क्रिया चल रही है, तो ऐसी प्रोग्रेसिव एक्शन वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में चल रही वो जो क्रिया, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाता है। मूविंग ऑन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक टाइप की पास्ट की घटना है। ओके, लेकिन उसको लाइक सिंपल पास्ट भी आएगा तो ऑब्वियसली उसमें भी हम वही बात करेंगे कि वो पास्ट की घटना है, लेकिन उसमें और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फर्क है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस has a particular tone of the action which is completed. Okay, let's say for example, I have seen this movie twice. Okay, मैंने ये मूवी 2 बार देखा है। इसका मतलब साफ है कि एक्शन तो पास्ट में हो गई है, but we are not defining the action as it was done in the past at a particular point of time in the past. Okay, पास्ट के ये समय में सपोज yesterday है, लास्ट मंथ है, लास्ट फ्राइडे है, ऐसा कोई पास्ट का वर्ड हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। वी आर पुटिंग मोर एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट एक्शन इज डन। मैंने ये मूवी 2 बार देखा है, सो परहैप्स आई एम नॉट लुकिंग टू वॉच इट अगेन। ओके, आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच। मैंने खाना खा लिया है, उसका मतलब पेट भरा हुआ है और मुझे नहीं खाना है। सो अगेन आई एम एम्फसाइजिंग मोर ऑन द फैक्ट दैट द एक्शन इज डन, ओके, रादर देन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सिर्फ एक ही चीज है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शन खत्म हो गया उस चीज के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। ऐसी बात पे हम जोर नहीं दे रहे हैं कि कब एक्शन हुआ था पास्ट में। ओके, पास्ट में कब एक्शन हुआ था ऐसा अगर हमें बताना है तो वी हैव सिंपल पास्ट टेंस। ओके, जस्ट अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं सिंपल पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। यस्टरडे, लास्ट मंथ, इन 1947, ओके, ऑन 15th of December 1978, ओके, लास्ट फ्राइडे। ये सारे वर्ड्स जो है, ये सारे फ्रेजेस हैं, उससे हमें पता चलता है कि एक्शन जो है वो सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड है। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल, उसका भी एग्जांपल मैं दे देता हूं। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947। ओके, तो ये सिंपल पास्ट का एक्शन हो गया। देन आई सॉ दिस मूवी लास्ट फ्राइडे। ठीक है, जो थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया कुछ उसी तरह का ये एग्जांपल, लेकिन फर्क समझिए। उसमें मैंने ये बोला था आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस, ये मूवी मैंने 2 बार देखा। अब कब देखा था वो नहीं बता रहा हूं मैं, आई एम जस्ट पुटिंग एन एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट आई हैव सीन दैट, दैट्स ऑल। कब देखा था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पे कब देखा था वो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। आई सॉ दिस मूवी लास्ट फ्राइडे, so we have an idea when that action happened. So basically simple past tense is used for the action that happened at some point of time in the past. Okay, and past continuous tense, okay, generally it is used for the action which was going on at a particular point of time in the past. I repeat my definition. Past continuous tense is used for an action which was going on at a particular point of time in the past. उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा मैं कि भूतकाल का कोई समय था, ठीक है, उस वक्त कोई एक्शन चल रही थी, ऐसा अगर हमें बोलना है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि The children were watching TV when their parents came home. Okay, इसको ट्रांसलेट करेंगे कि जब
बच्चों के माँ बाप घर पे आए तब बच्चे जो है वो टीवी देख रहे थे, तो वो जो उनके पेरेंट्स घर पे आए वो पास्ट का टाइम है, और जो एक्शन चल रही थी वो क्या है, टीवी देख रहे थे। ओके, so when the parents came home the children were watching TV, so this particular action, the children were watching TV, that defines past continuous tense. Okay, moving on, past perfect tense, right? अब ये past perfect tense को मैं शॉर्ट में past का भी past ऐसा बोलूंगा मैं। Why? Because it defines a certain action that happened before some point of time in the past. Past का कोई समय था, उससे भी पहले कुछ हो चुका था, ठीक है, उसको डिफाइन अगर हमें करना है तो past perfect tense का उपयोग किया जाता है। We can have an example like this. The train had already left when we reached the station. Okay, I repeat my statement. The train had already left when we reached the station. हम स्टेशन पे पहुंचे उससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी। Okay, the train had already left, ये past perfect tense है, ठीक है। When we reached the station वो पास्ट की घटना है, वो ऑलरेडी एक पास्ट की घटना है, लेकिन उससे भी पहले क्या हो चुका था, the train had already left. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस वो हो गया, उसके बाद मैं इसको स्किप कर रहा हूं, जैसे इसको भी मैंने स्किप किया था, उसका मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस डिफाइंस द एक्शन, ऑब्वियसली वो फ्यूचर से रिलेटेड है, तो भविष्य में होने वाली घटना के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू एट योर होम at 5 PM today, ठीक है, मैं आज शाम को 5 बजे तुमसे तुम्हारे घर पे मिलूंगा, ये उसका ट्रांसलेशन है, बहुत इजी है। फ्यूचर टेंस में विल या शेयर का इस्तेमाल होता है, मैं हेल्पिंग वर्ब में आपको बताऊंगा कि विल और शेयर कहां पे आता है, हालांकि आपको मालूम नहीं होगा। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस के बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में नाम के हिसाब से हम उसको डिफाइन करेंगे। It describes an action which will be in progress at a specific time, specific point of time in future. Okay? Again, I am giving you the definition once again that simple future tense is an action, a kind of an action which will be in progress at a specific point of time in the future. भविष्य के कोई समय पे वो एक्शन चल रहा होगा, अगर ऐसा हमें एज्यूम करना है तो सिंपल फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये बहुत ही रेयरली ये टेंस यूज होता है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन मान लो कि कुछ ऐसा अगर हम बोलना चाह रहे हैं कि कल इस वक्त, कल यानी कि आने वाला कल इस वक्त मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूंगा, ऐसा मुझे कुछ बताना है कि ऑब्वियसली क्योंकि ऐसा हमारा प्री प्लान है ट्रेन में जर्नी करने का कल, ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि आई विल बी ट्रैवलिंग इन ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो, आई विल बी ट्रैवलिंग ओके इन ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ओके, नाउ this one, next one is future perfect tense. Future perfect tense again is one of those tenses which is rarely in use, it's not so much in use, okay, लेकिन उसका definition अगर देना है तो कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं, it's an action that will be completed before a certain point of time in the future. भविष्य का कोई समय है, उससे पहले कुछ हो गया होगा, मान लो कि रात को 9 बजे से पहले मैंने खाना खा लिया होगा, मैं रात का 9 बजे ऐसे बोल रहा हूं तो वो आने वाला समय है, उससे पहले कुछ हो चुका होगा, ऐसा मेरा टोन है, तो आई कैन से दैट आई विल हैव फिनिश्ड माय डिनर बिफोर 9 PM. ओके, रात के 9 बजे से पहले मैंने रात का खाना खा लिया होगा, आई विल हैव फिनिश्ड माय डिनर बिफोर
9 p.m. So that's an example of future perfect tense. अब ये 3 टेंसेस मैंने छोड़ दिए, तो उसको एक्सप्लेन करना मैंने छोड़ दिया था, उसका एक अब रीजन मैं बता रहा हूँ. Okay, because all these 3 tenses they describe the dual actions. नाम से थोड़ा सा क्लियर होगा आपको. Present perfect continuous tense, it means the action is in the present time, an action is perfect also and it is continuous also. इसलिए मैं अब उसको आराम से समझाऊंगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बेसिकली क्या है. इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, ओके, व्हिच इज कंटीन्यूअस. वो हो रही है वो एक्शन, बट कितना टाइम से हो रही है वो भी हम साथ में बता रहे हैं. सो बेसिकली इट डिस्क्राइब्स an action which is in progress, and we are also saying for how much time it has been in progress. ठीक है. इसका अगर सिंपल एग्जांपल मुझे देना है तो मैं ये दे सकता हूं कि वो 2 घंटे से सो रही है. वो 2 घंटे से सो रही है, इट मींस कि ड्यूअल एक्शन है. वो सो रही है, इट्स अ प्रोग्रेसिव एक्शन. कितना टाइम से ये एक्शन हो रही है, तो 2 घंटे से. Okay, so it's an example of present perfect continuous tense. In English, we can say she has been sleeping for the last 2 hours. She has been sleeping for the last 2 hours. An example of present perfect continuous tense. Okay, इसमें helping verb 2 टाइप के आते हैं. Has been, फिर continuous action के लिए sleeping. She has been sleeping. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है. ओके, सिमिलरली उसका डायरेक्ट कंपैरिजन करना है हमें तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से कर सकते हैं. हालांकि बहुत रेयरली ये टेंस यूज होता है. इन अ वेरी वेरी रेयर केसेस, ओके, दिस टेंस इज यूज्ड. पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर सच एन एक्शन व्हिच वाज इन प्रोग्रेस at a particular point of time in the past, and we are also saying that for how much time that action was in progress. वो एक्शन चल रही थी पास्ट के कोई समय में, लेकिन सिर्फ ऐसा ही बताना है कि वो एक्शन पास्ट के कोई समय पे चल रही थी, तो उसके लिए तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है. लेकिन कितने टाइम से चल रही थी पास्ट में वो भी बताना है, तो ऑब्वियसली वी हैव पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. राइट? ओके, तो प्रीवियस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि मैं उसके घर पे गया, तो मैं उसके घर पे गया तब वो लॉन्ग टाइम से सो रही थी. ओके, तो इस तरह से बोला जाता है इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करके. शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन आई वेंट टू हर हाउस. शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन आई वेंट टू हर हाउस. ये है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. और जो लास्ट वाला है फ्यूचर से रिलेटेड, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. सबसे कम इसका उपयोग होता है इंग्लिश ग्रामर में. इतना रेयर यूज होता है कि हम हजारों सेंटेंस में से एक इस टेंस से रिलेटेड हम पा सकते हैं. ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज होता है. ओके, और कई बार तो ऐसा भी मालूम पड़ता है कि कुछ ग्रामर की बुक्स में there are like they have shown only 11 tenses, they have not shown the 12 tense all together, but obviously 12 tense होता है. ठीक है, भले ही 1000 में से एक टेंसेस, लेकिन एटलीस्ट इतना भी तो उसका यूज होता है. तो हम इस टेंस को भी डिफाइन करेंगे कि फ्यूचर में the kind of an action, okay, in future that is happening, the kind of an action that will be happening, that will be in progress for a certain period of time at a specific point of time in the future. Okay, भविष्य का कोई समय होगा जिसमें एक्शन चल रही होगी, लेकिन भविष्य में एक्शन चल रही होगी तो उसके लिए तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है. लेकिन हम एडिशनली ये भी बता रहे हैं कि कितने टाइम से चल रही होगी, तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है. अब आप समझ सकते हैं कि ये डेफिनेशन ही इतना कॉम्प्लेक्स है, तो उसका यूसेज भी इतना ज्यादा नहीं होता है. ठीक है,
लेट्स से फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा अजीब एग्जांपल आपको लगेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है। कि अगर मुझे कुछ ऐसा टेक्निकल इंफॉर्मेशन देनी है कि लाइक नेक्स्ट मंथ, ओके, नेक्स्ट मंथ मैं इस कंपनी में एग्जैक्टली 5 साल से काम कर रहा हूँ, यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि नेक्स्ट मंथ मुझे काम करते हुए इस कंपनी में मुझे काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे, ओके। लेकिन क्योंकि मेरा काम करना भी जारी रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, ठीक है, इसलिए मैं कुछ ऐसी सिचुएशन में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस तरह से यूज कर सकता हूं कि आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 years in the next month, okay. I'll repeat my statement, don't worry. I will have been working in this organization for 5 years in the next month. Right? I hope that you will have understood the statement, the example. And the primary usages of all the 12 tenses now. Okay? वो आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो गया होगा साथ में, और अगर नहीं हुआ है तो don't worry. We are going to discuss all the 12 tenses in detail in the subsequent lectures. Okay, now tenses का सीधा ताल्लुकात जो है वो verbs के साथ होता है, इसलिए थोड़ी बहुत चर्चा हम उसकी भी करेंगे, okay? क्योंकि tenses में अगर कोई चीज चेंज होती है, बदलती है, तो वो है verb, और verb के 2 टाइप हैं, okay? Action verb and helping verbs. एक auxiliary verb भी होता है, तीसरा टाइप भी है, but they are not directly relevant to the tenses as of now. सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा हर एक टेंस का, ठीक है, तो उसमें जो सारे वर्ड्स आएंगे उसकी मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं आपके साथ। नाउ साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने प्राइमरी लेवल में आपने ये भी पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको पता ही होगा, ये सब नहीं पता है तो वापस सुन लीजिए कि कोई भी सेंटेंस होता है इंग्लिश का, ठीक है, उसका कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड होता है that always belongs to any part of speech. वो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, फिर प्रोनाउन हो सकता है, ओके, वो वर्ब भी हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है, वो प्रपोजिशन हो सकता है, वो कंजंक्शन हो सकता है, वो इंटरजेक्शन हो सकता है, या तो फिर वो आर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। कई बार इस तरह से सिखाया जाता है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, के पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, लेकिन 1 नहीं है, दे आर एक्चुअली 9। वापिस उन सबके नाम मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ध्यान से नोट कीजिएगा अगर आप भूल गए हैं तो, कि नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल्स, ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। यानी सेंटेंस का कोई भी एक वर्ड आप चूज करोगे तो कोई ना कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच से वो बिलोंग करता है। और अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि विच वर्ड ऑफ एनी सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, कि वाक्य का कौन सा शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए वर्ब। I repeat my explanation to you that verb is the most important word of any sentence, because without verb we cannot make a sentence. Simple सा लॉजिक है उसका, कि बाकी सारे वर्ड होंगे नहीं होंगे तो वो हो सकता है, लेकिन verb definitely होता है। Without verb we can't frame a sentence, right? So keeping that in mind, I would again like to remind you that verb के फॉर्म्स में चेंज हो जाता है तो टेंस भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा वर्ब का स्टडी करना जरूरी है। वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब होते हैं, और एक्शन वर्ब के भी 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसको मैंने कोड वर्ड में लिखा है, वो शायद पता ही होगा कि V1, V2 and V3, okay? V1 basically defines the present form of the verb, V2 defines
the past tense form of the verb, okay, and V3 defines the future tense, the future form. Actually it's not exactly the future, but थोड़ा सा ग्रामर की लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा. शॉर्ट में लिखा है पास्ट पार्टिसिपल. ओके, पास्ट पार्टिसिपल उसको कहते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में. शॉर्ट में मैंने पीपी लिखा है, सो डोंट मिस्टेक इट बाय अंडरस्टैंडिंग समथिंग एल्स. सो प्रेजेंट टेंस, उसको कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं कि गो है, सपोज वो प्रेजेंट टेंस है तो उसका पास्ट टेंस वेंट होता है, एंड V3 फॉर्म दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल, वो उसका गॉन होता है. Okay, and then do is the present tense, so the past tense did होता है, and the past participle is done. Similarly, we have buy, V2 is buy, V3 also is V2 is bought, and V3 is also bought. Okay, so next one is played. So in this case also V2 as well as V3 both have the same forms, and the last one is cut. तीनों forms similar है. उसमें तीन अलग अलग वेरिएशन इसमें देखने को मिलेंगे कि कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जिसके तीनों फॉर्म्स के स्पेलिंग अलग है. गो, वेंट, गॉन फॉर एग्जांपल, डू, डिड, डन, तीनों स्पेलिंग अलग है. कुछ ऐसे भी वर्ब्स मिलेंगे आपको जिसके जो वर्तमान काल है प्रेजेंट टेंस वो डिफरेंट है. V2 as well as V3, ओके, वो अलग है. वो दोनों सेम है, बेसिकली वो दोनों सेम है. bought, V2 is also bought and V3 is also bought. Okay, plain example maybe yes, number of examples, and I cannot write all the verbs over here because there are thousands of them. Okay, so played both define the V2 as well as V3 forms. कुछ spellings ऐसे भी हैं, कुछ words ऐसे भी हैं जो तीनों फॉर्म में सेम स्पेलिंग उसका इस्तेमाल होता है. कट, ठीक है. Similarly, शर्ट, okay, read, इनमें तीनों में स्पेलिंग सेम है, लेकिन रेड पास्ट में रेड बोला जाता है. प्रेजेंट में हम रीड प्रोनाउंस करते हैं, पास्ट में उसको रेड बोला जाता है. और V3 फॉर्म अगर यूज हुआ है तो उसमें भी वहां पे भी रेड किया जाता है, यानी बोला जाता है. ओके, तो ये एग्जांपल्स हैं एक्शन वर्ब्स. सिमिलरली वी हैव सम हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब जैसे एक्शन वर्ब जो है दे डिफाइन सर्टेन एक्शन, कोई क्रिया को वो डिफाइन करते हैं. सपोज वो है तो जाने की क्रिया. ओके, प्ले है यानी खेलने की क्रिया. इस तरह से होता है. हेल्पिंग वर्ब्स नाम के हिसाब से डिफाइन कर दूं मैं कि दे हेल्प अस टू मेक द सेंटेंस. वो सिर्फ हमें हेल्प करते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए हेल्प करते हैं. दे डू नॉट कैरी एनी पर्टिकुलर ट्रांसलेशन. ठीक है, तो टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होने वाले हैं वो है डू, डस या डिड, या तो फिर हैव, हैज, हैड, एंड विल एंड शेल. These are the kind of range of verbs that we are going to study while studying the tenses in detail. ठीक है, तो इसमें से काफी सारी बातें ऐसी है जो शायद आपको ऑलरेडी पता ही होगी, लेकिन अगर नहीं पता है तो रिवीजन अपना कर लीजिएगा. आपके पास अगर ग्रामर की कोई बुक है तो उसमें से, और अगर वो भी नहीं हो सकता है तो आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में स्टडी करने ही वाले हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, तो यहाँ पे टेंसेस का डिटेल में जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं कह सकता हूँ, लेकिन लेक्चर अच्छा खासा लंबा हो गया है. सो आई कैन यूज दैट वर्ड डिटेल आल्सो. Detailed introduction, we can put it in that way. So the introduction of the tenses over here gets over, right? कोई डाउट है तो जैसा मैंने आपको बताया आगे, you can convey it to me directly through the mobile app or through WhatsApp number also, or through the message. Right? So that's it for now. Bye bye.